salutation to the God. God means pure conscious. God means pure conscious. The name of God actually is pure conscious, because world without conscious becomes unsouled. Unsouled means like dead body. Dead body and living body. On living body there is a conscious, but on the dead body no conscious. We can know the value of conscious from between living body and a dead body. On dead body we cannot get conscious. Consciousless is dead body. But on living body there is a conscious. Due to conscious, the body, the man can go, can come, can talk, can walk. Everything he can do. Due to the only conscious. And on dead body cannot speak, cannot hear, cannot walk, cannot run, because no conscious. So, to know the God, we should know the importance of conscious, pure conscious. Exactly the meaning of God is pure conscious. Nobody is without conscious. With the only conscious, man and woman has been possible to do their works, to behave with the world. If no conscious, that becomes dead. They cannot do anything, because dead body cannot do anything, because there is no conscious. So we should know the meaning of the God. According conscious, we all are, with the help of conscious. The sovereignty of this world, the sovereignty of the body is only conscious. So, God, we are God. So we should pass our days according only God. If we pass our days according God, at the time of death also we can get God. After death also our position will be according God. So we should think about this now, because past is past, future is uncertain. Present time is the most important time. What we decide now, that makes future either positive line or negative line. God line, positive line. World line, the negative line, because world line goes towards death, and line of God goes immortal side.
always immortal, because God is immortal. Conscious is immortal. Conscious is immortal. According to conscious, the name has been God. It is true. It says from Vedas, from the conclusion of Ved, only focus about the conscious. Conscious does not die. Dies only the body where is no conscious. So, conscious, pure conscious is our actual nature. It is true. We can realize the experience of conscious from the example of sound sleep. The experience of sound sleep is the experience of God. Conscious, only pleasure, only self-life, only pure conscious, pure intelligence. So, bodies, world, just like dream, long dream, short dream, day dream, long dream, night dream, short dream, dream same, either long or short, same, not true, true only pure conscious. I describe, I explain, I present about this in Hindi language and Nepali language. सभी को अभिवादन। परमात्मा का नाम है चेतन, चेतन का नाम है परमात्मा। शुद्ध चैतन्य परमात्मा का वास्तव स्वरूप है। जो शुद्ध चेतन है, जो शुद्ध चैतन्य है, वो ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा के अलावा संसार में कोई भी नहीं है। अर्थात सभी के अंदर केवल चेतन है, वही परमात्मा है। चेतन के अलावा कोई भी नहीं है। अगर बगैर चेतन तो मरा हुआ शरीर है। मरा हुआ शरीर, वहाँ चेतन नहीं है, इसलिए वो मरा हुआ शरीर बन गया, क्योंकि वहाँ चेतन नहीं है, अचेतन है, सेंसलेस। सो इस कारण से, यही कारण से परमात्मा हम लोगों का, सबका, संसार का हम सबका असली स्वरूप है, जो हरदम रहता है। उसमें मृत्यु नहीं है। चेतन का मृत्यु नहीं होता है। जहाँ चेतन शरीर में नहीं रह जाता है, तब शरीर मर जाता है। उसको मरा हुआ शरीर कहा जाता है। जब तक चेतन है, आदमी को मरा हुआ कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा को पहचानने के लिए असली प्रमाण है, असली अनुभव का प्रमाण है चेतन, केवल चेतन। केवल चेतन ही परमात्मा का नाम है। वो हरदम रहेगा, उसमें ही असली आनंद मिल जाएगा। वो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है। वो अपने अनुभव में रहता है, शुद्ध अनुभव, केवल अनुभव, पवित्र अनुभव, जो स्वयं प्रकाश है, जहाँ आनंद ही आनंद है, वही हम लोगों का स्वरूप है। उसको सुषुप्ति का दृष्टांत से, गाढ़ा निद्रा के दृष्टांत से
चाहे गाढ़ा निद्रा कहे चाहे सुषुप्ति कहे, वही है। वहां से हम लोग जान सकते हैं कि चेतन के बारे में, क्योंकि जो सुषुप्ति अथवा गाढ़ा निद्रा है, जो अनुभव होता है केवल परमात्मा का ही अनुभव होता है। और जो संसार है वो स्वप्न के बराबर है, चाहे दिन का लंबा संसार चाहे रात का छोटा संसार, दोनों सपना, लंबा सपना छोटा सपना, वो मिथ्या है। जहाँ मरण बैठा है, जहाँ दुख तकलीफ बैठा है, जहाँ बुढ़ापा बैठा है, रोग व्याधि बैठा है, वो हम लोगों का यथार्थ स्वरूप नहीं है। हम लोगों का यथार्थ स्वरूप शुद्ध चेतन तथा शुद्ध चैतन्य, जो हरदम हम लोगों के अंदर रहा है, रहेगा, रहा था पहले से, जो अभी भी है, बाद में भी रहेगा, उसका नाम है चेतन। दूसरा नाम है चेतन का परमात्मा। परमात्मा का नाम और चेतन का नाम एक ही है। और जो चेतन जो है उसके अलावा सब जड़, अहंकार से लेकर शरीर तक सब जड़, शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अहंकार ये सब जड़ है। वही चेतन के नाते ये काम कर रहा है। जब चेतन शरीर में नहीं रहेगा तब काम नहीं करेगा, उसको मरा हुआ शरीर कहा जाता है। दृष्टांत में लोहा जो है काला और ठंडा, लोहा जो फलाम कहा जाता है, उसका स्वभाव है देखने में काला और स्वभाव में ठंडा। लेकिन अग्नि के संपर्क से वो लाल होता है, सुंदर दिखाई देता है, गरम अनुभव होता है, जहाँ से भगवान का मूर्ति भी बन जाता है। फलाम जो लोहा है, अग्नि के सहारा से, अग्नि के शक्ति से, अग्नि का सहयोग से भगवान का मूर्ति भी बन सकता है। लेकिन केवल लोहा नहीं बन सकता है, बन सकता है केवल चेतन के अर्थात चेतन सदृश जो अग्नि है उसके सहारे से। बिना अग्नि लोहा कभी भी न रड बनता है, न कोई बर्तन बनता है, न कुछ भी बनता है केवल अग्नि के सहारे। वैसा ही जो जड़ है, शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अहंकार अविद्या अज्ञान माया, ये सब जो कुछ है ब्रह्मा जी तक, शिनका से लेके ब्रह्मा जी तक, क्योंकि ब्रह्मा जी है संकल्प, केवल समष्टि संकल्प का नाम है ब्रह्मा जी। समष्टि संकल्प से लेके शिनका तक वास्तव में सब जड़ है, लेकिन चेतन के सहारे ही सब काम करता है जो कर रहा है। अगर चेतन के अलावा, अगर चेतन का सहायता न ले, कोई भी संकल्प नहीं काम करेगा, न शरीर काम करेगा, न इंद्रिय प्राण मन बुद्धि अहंकार अविद्या माया अज्ञान, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जानने का एकमात्र सूत्र है परमात्मा को केवल चेतन, कॉन्शियसनेस। ये सच बात है। सबैलाई अभिवादन, परमात्मा हामी सबैको स्वरूप हो, त्यो चेतनलाई लिएर मात्रै हुन्छ। शरीरमा चेतन र जड दुईटा छ। जड शरीर पनि चेतनले गर्दा हिँड्ने बोल्ने दगुर्ने सब गर्ने भएको छ, तर चेतन जति बेला रहन्न त्यति बेला शरीर मर्छ। त्यसकारण
यही चेतन जो परमात्मा हो, यही को कारण नै, यसैको कारण नै शरीर संसार चलायमान भएको हो। यसमा कारण केवल चेतन हो। चेतनको नाम परमात्मा हो। परमात्मा र चेतन एउटै हो। हर हालतमा चेतन मर्दैन। चेतनमा सधैँ सुख छ, सधैँ स्वयं प्रकाश छ, सधैँ शुद्ध अनुभव छ, किनकि यो शुद्ध चैतन्य हो। आजको लागि हामीहरूको लागि यही हो पाठ, असली पाठ। आज का मतलब अकॉर्डिंग नेपाली डेट 2081 साल महीना आश्विन। आश्विन महीना का आज 12 गते, आज शनिवार है। अकॉर्डिंग इंग्लिश डेट 2024 द मैन September today 28 डेट सैटरडे, तिथियम आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी, इंदिरा एकादशी, शनिश्चरवार। We are telling from Balaram GC, title Sadhvait Pradeep Saraswati, President of Akhand Sukha Kendra from Nepal country. From Nepal, Bhairava through medias, Rupandai FM, Radio Parasi, Srinagar FM from Palpa Tansen, from Butol Mukti FM, we are listening and telling about our immortal nature, that is God. God means only conscious, pure conscious, केवल शुद्ध चैतन्य नै भगवानको असली स्वरूप हो, जो हामी संसारका सबैको अमर स्वरूप हो। जो यो अभिव्यक्ति हो, वेदान्त अभिव्यक्ति हो, यसमा कुनै शंका छैन, कुनै त्रुटि छैन। कसैले यसलाई होइन भन्न कसैको तागत छैन, किनकि यो वेदान्तको भगवानको वचन हो। अहिलेलाई यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत।